Hello everyone. Our today's topic is input and output devices. So in this chapter we are going to learn about what is input and output devices. So before starting about input and output devices, first we know what is computer system. So a computer is an electronic machine that works on electricity. It can be compared to a magic box that can do a variety of jobs. Through computer we can do a variety of jobs. Computers are not confined to office only, they can be seen everywhere around us. It is not limited to office only, it is used in today's the full words. The full words are using computer like shops, schools, hospitals, banks, airports, railways, station, etc. They work very fast and give 100% accurate results. So in short, we can say a computer is an electronic device that accepts data and instruction given by the user and process them accordingly and given meaningful results. So we can say that a computer is an electronic device that can use data and instruction by as an input and process that, and after processing gives us output. So a computer system performs three basic functions. What is the basic function of a computer? That is input, processing and output. Input can we which we insert in the computer, that is raw material, data and all that thing. Processing, whatever we want to enter in the data. After processing, it will process, and after processing it will gives us output. So first we enter raw data and material, that is input, and the operation which we perform on that raw data and material is called processing, and after that when it is processed then it will become information, that is output. The computer system works with the help of hardware and software. So basically the two components of computer is a hardware and software. The physical part of a computer that we can touch and see are called computer hardware. तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है हमारा, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, डेट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर. जैसे कि हमारा क्या हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, इसको हम टच कर सकते हैं इजीली. And the software is a set of instruction that helps the hardware to work in a desired manner. तो सॉफ्टवेयर क्या है, द सेकेंडली थिंग विच सॉफ्टवेयर कांट बी टचेबल. सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसके थ्रू हम हार्डवेयर से कनेक्ट हो सकते हैं. सो बेसिकली वी कैन से ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है टू कनेक्ट विद हार्डवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. विदाउट सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. सिमिलरली इफ हार्डवेयर इज़ नॉट देयर, सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ नो यूज़. या अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा, और सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. This can be understood with the help of given examples. So let us consider the example. To listen to music we require a music system. म्यूज़िक को सुनने के लिए हमें म्यूज़िक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. सो इन द सेम विद द म्यूज़िक सिस्टम रिक्वायर CD and DVD आर हार्डवेयर बिकॉज वी कैन टच दैम. कैन यू टच द सॉन्ग्स, क्या आप सॉन्ग को टच कर सकते हैं? नहीं, नो, बिकॉज दैट इज़ सॉफ्टवेयर. वी नीड बोथ टू इन्जॉय द म्यूज़िक. हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है म्यूज़िक को इन्जॉय करने के लिए. The main component which carry out the basic operation of a computer are the keyboard, mouse, CPU and monitor. So हमारे basically main components क्या होते हैं कंप्यूटर के, जिनके without these component a computer cannot work. These are keyboard, mouse, CPU. So without keyboard, mouse and CPU and monitor the computer cannot be work. कोई और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हो या ना हो, बट ये अगर कनेक्ट नहीं है तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. बिसाइड दीज कंपोनेंट्स सम एडिशनल पार्ट्स कैन ऑल्सो बी अटैच टू ए कंप्यूटर. इन कंपोनेंट्स के अलावा भी कुछ अलग से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि वर्क करती हैं, जो हमारे वर्क को ईजियर बनाती हैं. जैसे कि कौन कौन से होते हैं ये, दीज एडिशनल पार्ट्स. इन एडिशनल पार्ट्स को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं. वो कौन से होते हैं हमारे, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया एंड मॉडम हो गया. ये हमारे सारे जो होते हैं ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है. लेट अस कंसीडर अबाउट इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिनके थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इज अ कीबोर्ड. सो हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इज द कीबोर्ड. सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, कीबोर्ड. द अदर इनपुट डिवाइसेस आर माउस, ट्रैक बॉल
and light pen. These all are input devices which do not require typing of the data. So इन input devices को use करने के लिए हमें type करने की need नहीं होती है. They are called pointing devices. For pointing devices, we can select any item on the screen by pointing and clicking on it. We can easily select by pointing or clicking. So common input devices are keyboard. As we already told you, keyboard is the most common input devices. It is used to enter data and instruction into a computer by typing. And standard keyboard has 104 keys which can be divided into 4 groups. So four groups कौन से हमारे टाइपिंग कीज़ में कौन सी कीज़ होती है हमारे अल्फ़ाबेट की एंड न्यूमेरिक कीज़. सेकेंड फंक्शन कीज़ में हमारे F1 to F12 कीज़ होती हैं जो कि हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं. नेक्स्ट इज़ नेविगेशन कीज़. इसमें हमारी एरोज़ कीज़ होम एंड पेज अप पेज डाउन etc. ये सारी कीज़ हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं. एंड कंट्रोल कीज़, दीज ऑल आर कंट्रोल कीज़ विच इज़ यूज टू कंट्रोल ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. दैट इज़ कंट्रोल ऑल्ट विंडो लोगो की एंड ESC. The second common input devices is a mouse. A mouse is a handheld pointing devices with 2 or 3 button on its top. माउस तो आप सभी ने मोस्टली यूज़ किया होगा. तो माउस में क्या होता है कि टॉप पे 3 बटन्स होते हैं, राइट लेफ्ट एंड बीच में एक ट्रैक बॉल टाइप का बटन होता है. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर. ये पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट to control the movement of a pointer. It is also used to point and select the object and open files folder. सेलेक्ट करता है, ओपन करता है फाइल एंड फोल्डर को. ए माउस इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर. माउस जो है हमारा पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ होता है. द थर्ड इनपुट डिवाइस इज अ माइक्रोफोन. थ्रू माइक्रोफोन इट इज़ ऑल्सो वर्क एज इनपुट डिवाइसेज विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड sound into the computer system. If you want to record a video, then you can easily use microphone and it can easily convert the voice came into your video. Sound card enable the computer to record sound input from a microphone. There is a sound card in the microphone which makes enable to record your video. Apart from recording sound in a computer, a microphone is used in many applications such as telephones, tape recorders, and karaoke system, hearing it. So more input devices are basically touchpad which we are using our laptop computers. It is most sensitive pad. You can control the movement of the pointer on the screen of moving the finger on the touchpad. So touchpad हमारा क्या काम करता है, ये रिप्लेसिंग करता है माउस को. जैसे हम कंप्यूटर के लिए माउस का यूज़ करते थे वैसे ही लैपटॉप्स में टचपैड आ गया. तो टचपैड पे क्लिक करके आप पॉइंटिंग करके आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. ये सारे काम आप टचपैड से करते हैं. टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज़ सेंसिटिव टू टच. ये टच करने से वर्क करता है स्क्रीन पे भी. अब हमें क्या है, टच पैड और माउस दोनों की नीड नहीं है. वी कैन इजीली टच द स्क्रीन एंड वी कैन वर्क ऑन इट. We can select the object directly by touching with finger without using an pointing device. So most commonly example क्या है इसका, ATM machines. Light pen. A light pen is a pen like pointing devices. It is used to select object on the display screen. ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्प्ले स्क्रीन. सो ये इसका काम होता है लाइट पेन के थ्रू ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है. द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज डिजिटल कैमरा. ए डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोज़. तो कैमरे का क्या काम होता है कि वो हमारा फोटोग्राफ क्लिक करता है और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता है. फोटोज़ वीडियोज़ टेकन विद द डिजिटल कैमरा आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी चिप. कैमरा के अंदर एक चिप होती है जिसमें हम फोटोज़ और जो भी हमारा वीडियोज़ है वो स्टोर हो जाते हैं. Then the digital camera is plugged into the computer and the images video are transferred to the computer for storing, editing, printing. क्या होता है कि हम लोग क्लिक कर लेते हैं, हमें जो भी वीडियो चाहिए होती है, फ़ोटोज़ चाहिए होता है, उसके बाद हम इनको ट्रांसफ़र स्टोर कैसे होता है, मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाता है जो कि हमारा डिजिटल कैमरा में होता है ऑटोमेटिकली. फिर उसको हम ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर में ले जाके एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं जो भी हमें करना होता है. द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ वेब कैमरा. वेब कैमरा के थ्रू अब आजकल आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं. सो वेब कैमरा क्या है, वेब कैमरा के थ्रू आप लोग जो वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं बाय लैपटॉप बाय कंप्यूटर, ये वेब कैमरा का वर्क होता है. इज़ द डिवाइस कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोज़. लाइव वीडियोज़ के थ्रू कनेक्ट होता है. प्राइमरली यूज टू शेयर पिक्चर एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव यूजिंग इंटरनेट. सो वेब कैमरा का काम है लाइव वीडियोज़ वगैरह कराना.
The next is scanner. It is a device that read text or picture printed on a paper and translate the information into a form that a computer understand. सो बेसिकली स्कैनर आप सभी ने यूज़ किया, ये एक इनपुट डिवाइस है, एक ऐसा इनपुट डिवाइसेस है जो प्रिंटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल इंफॉर्मेशन में, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस है। अगर हमें कुछ भी चीज़ ऐसी चाहिए प्रिंटेड है पेपर पे और हमें उसे कन्वर्ट करना है, कुछ एडिट करना है, तो वी कैन इजीली स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड वी कैन इजीली एडिट विद दैट डॉक्यूमेंट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर इज द फ्लैट बेड स्कैनर विच हैज़ ए फ्लैट ट्रे विद ए ग्लास पेन एंड ए कवरिंग आईडी। सो बेसिकली हमारे 3 टाइप के स्कैनर होते हैं, उनमें से जो मोस्टली यूज होता है फ्लैट बेड स्कैनर ही होता है। द सेकेंड इज सीट फेड स्कैनर एंड द थर्ड इज हैंड हेल्ड स्कैनर। Hope you all understand about input devices, and so in this video we are discussing about what is computer, what is input devices, what is hardware and software. So hardware क्या होता है हमारा, जो हम टच कर सकते हैं, that is called hardware. Software क्या होता है, software is a can't be touchable, but with the combination of both a computer can work, otherwise the computer can't be work. So next is our input devices. हमारे mostly input devices कौन कौन सी होती है? Most commonly input devices हमारी keyboard है, apart from that we have a mouse and microphones also, and apart from that we have some more input devices, that is touchpad, touch screen, light pen, digital camera, web camera, scanner. These all are input devices. Hope you understand this topic. Thank you guys.